आई लॉस्ट माय फादर इन माय यंग डेज। उन्होंने कहा कि हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में जाकर एक एंट्री लेकर आओ, फर्स्ट फ्लोर पे जाओ और हाथ हिला के दिखाओ कि हम लोग पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। So I went with this mind कि I will take MD PSM. MD PSM was there, MD surgery was there, MD MSc NT was there, but I took this field MD Pharma because कहीं ना कहीं मुझे ये था कि थोड़ा सा बेटर कॉर्पोरेट फील्ड में रहेंगे तो बेटर करेंगे। So hi everyone, I am Dr. Nachiket Bhatia and today on the episode 3 of Heart to Heart Chat with our original gurus, I have Dr. Saurabh Bhatia with us. Saurabh sir has been an integral part of Bhatia for the last, sir कितने साल हो गए? 13 years. 13 years now and मैं कहूँगा कि that अगर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था जब मैंने भाटिया में एंटर किया था वो सर ही थे। तो आज हम सर के साथ मैंने वही चीज करी है, सर को मैंने पूरी स्क्रिप्ट दी, उसके बाद स्क्रिप्ट मैंने कहा सर को साइड कर दो, बिल्कुल नए सवाल हैं, बिल्कुल नई बातें हैं और आज हम जानेंगे कि सौरभ भाटिया सर 13, 15, 18 साल पहले क्या थे, कैसे थे और क्या उन्होंने उनकी स्ट्रगल रही, उनकी क्या लाइफ रही कि वो आज यहाँ बैठे हैं मेरे साथ, मुझे टाइम मिला उनके साथ बैठने का। तो सर आज यही सारी बातें होने वाली हैं, ठीक है ना, ऑनेस्ट बातें करनी है, हमें आपकी लाइफ जाननी है। सौरभ सर घर में कैसे हैं, तो मैं ये चीज कहूंगा सर, और सौरभ सर हमारे बहुत टाइम तक सर पड़ोसी थे, लोग यही कहते थे कि डॉक्टर भाटिया का असली बेटा एक है तो सौरभ सर है। मेरा बात दूसरा आता था। तो सर आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी सर, स्कूल में कहाँ गए थे, कैसी थी? First of all, thanks Dr. Nachiket for inviting me here. And like guys, let me tell you, it's the first time I have come here as an informal talk for the informal talk with Dr. Nachiket. So I never been to like this way. So even I was insisting him to have some previous like script ready with me so that I can answer those questions. But he insisted me, "Nahi sir, you have to answer all those questions randomly." So it's the first exposure, first kind of exposure for me. So and as far as like those things are true, like I was like used to live very nearby to his house, and ऐसा नहीं है कि doctor I was the first son of his Dr. Bhatia, but obviously I will consider Dr. Bhatia as my as a father figure. So Dr. Bhatia was the first person who has guided me like how to go with this coaching field and how to start this teaching and everything. So in terms of my professional father, I can say yes, Dr. Bhatia is my professional father. So no doubt about that. And what about next questions then? सर स्कूल के दिन कैसे थे आपके, कहाँ स्कूलिंग करी आपने? So I have done my schooling from Central School, from Kendriya Vidyalaya, you must be knowing, that's present all over India. And I was good at school, like I was among the toppers, like most of you who are doctors here must be the toppers of your batches. So I was among the toppers, and it was good, and that time was good because students were in my school, because that was a kind of a semi-government school, not proper. I would not say it's a private school; it's a kind of a semi-government school. So students were not that much oriented about this medical studies. So even I was also not oriented, but somehow I got a knack that I should go to this medical field, and I prepared by myself. I took a very short coaching from Akash Institute, only for 1 or 2 months. But after that, I didn't take any coaching. I prepared by myself and I cleared the exam. तो सर आपको कब लगा कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए? बिकॉज सर आई थिंक जब मेरे टाइम में क्या हो गया था, अगर 50 बच्चे हैं तो 45 बच्चे जाते थे इंजीनियरिंग की तरफ, 5 बच्चे आते थे मेडिकल की तरफ, वो भी जिसके सर पे प्रेशर होता था। ऐसे मेरे पापा ने कहा था तू डॉक्टर बनेगा तो मैं डॉक्टरी में आता, वरना मैं कभी डॉक्टरी में नहीं आता। तो सर आपको क्यों लगा कि आपको डॉक्टर बनना है? डिफिकल्ट क्वेश्चन। एक्चुअली मैं बस यही कहूँगा कि उस समय जब हम स्कूल डेज में थे तो इफ आई टॉक अबाउट माय पर्सनल लाइफ, सो लाइक माय फादर वाज नॉट देयर, लाइक आई लॉस्ट माय फादर इन माय यंग डेज। सो मुझे नहीं पता था क्या पढ़ना है, तो घर वालों ने कहा कि डॉक्टरी फील्ड इज गुड, लाइक इट्स बेटर टू हेल्प अदर पीपल एंड यू कैन बी यू कैन बी अ पर्सन हु कैन हेल्प अदर इन द फ्यूचर ऑल्सो. So and also the earnings would be good, like if you're a doctor, so you can will settle in your life. और मेरे टाइम पे इंजीनियरिंग का इतना स्कोप नहीं था, लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो था उसमें जस्ट लॉन्च हुआ था, तो the scope was not that much. So somewhere I decided कि it's better to go for this medical field. अच्छा, that's why I tried. तो जब आप मेडिकल की पढ़ाई करनी शुरू करी आपने 11वीं 12वीं के अंदर, तो कभी लगा कि गलत फील्ड ले ली है? नहीं, कभी नहीं लगा गलत फील्ड लिया, नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा. तो enjoyed like my 11th and 12th classes. I enjoyed my school days. I enjoyed my even the college also. तो स्कूल, अभी स्कूल पे रहते हैं, स्कूल की सबसे क्रेजी स्टोरी क्या याद है सर आपको?
सबसे क्रेजी स्टोरी क्या याद है? स्कूल डेज में, स्कूल डेज की क्रेजी स्टोरीज में बस यही है कि बस थोड़ा शरारत करते थे। हाँ तो शरारत बतानी सर हमें। लाइक हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि जब हम 15 अगस्त या 26 जन का जब ये सेलिब्रेशंस होते थे, तो हम लोगों को स्कूल में कुछ स्वीट्स मिलते थे, लाइक बिकॉज आई वाज फ्रॉम दिस गवर्नमेंट स्कूल। तो हम लोगों को जो स्वीट्स मिलते थे उसमें एक हमें लड्डू मिलता था और एक कहीं ना कहीं एक समोसा मिलता था। तो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर दैट इवेंट कि जैसे ही वो फंक्शन ओवर हो और हमें वो लड्डू और वो समोसा मिले। सो जब मैं 11th-12th में था तो आई वाज इंचार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ ऑल दिस स्वीट्स। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरा एक बॉक्स उठा के अपने पास रख लिया। लाइक हमें नहीं पता था कि वो खराब हो जाएंगे कल को, बट इस उम्मीद में कि इसको हम कीप ऑन हैविंग दिस लड्डूज एंड समोसा फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 वीक्स। सो वी जस्ट केप्ट इट स्टोर्ड इन अवर लॉकर कि ठीक है इसको बाद में खाएंगे। और 2 दिन के बाद जब हमने वो खोला तो पता लगा लाइक कुछ हमने एक्स्ट्रा भी लिए लड्डूस। तो वी केप्ट ऑन कंज्यूमिंग दोस लड्डूस एंड समोसा फॉर 2 days। देन फाइनली व्हेन वी ओपन दैट बॉक्स आफ्टर 2 days वी फाउंड कि एवरीथिंग वाज स्पॉइल्ड। तो वो बस क्रेजी मोमेंट था कि हमने लगा कि हमने वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किया, हमने उसको उठाया भी और उसको फिर हमने एंजॉय भी नहीं कर पाया। तो दैट वाज द मोस्ट क्रेजीएस्ट मोमेंट इन माय लाइफ इन द स्कूल डेज, आई वुड से। तो सर नीट यूजी आपने पहली बार में क्रैक कर लिया था? नीट यूजी में पहली बार में क्रैक नहीं किया था, बिकॉज पहली बार में मुझे ओरिएंटेशन नहीं थे, बिकॉज आई वाज फ्रॉम अ स्कूल एंड आई वाज फ्रॉम द फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पर मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं था कि इसको नीट पीजी के लिए कैसे पढ़ना है। सो आई वाज नॉट बीन प्रॉपरली ओरिएंटेड, सो आई टुक 1 year drop and then I prepared for myself for अच्छा, this exam. अगली बार क्या रैंक आई? My rank was 151, I think, in Delhi PG. क्या बात, Delhi क्या PMT. बात। Delhi That time we have the में- Delhi PMT exam. और CBSE में my rank was around 11, I think 1100 was my rank. तो क्या कौन सा कॉलेज लिया आपने? I took UCMS Delhi. I opted a seat from DPMT, Okay. Delhi College. So I took UCMS from my UG. सर हॉस्टल में गए थे आप? हॉस्टल में मैं रहा था बिकॉज जो मेरा कॉलेज था मेरे घर के बहुत पास था, तो हार्डली 15 मिनट्स का रन था वहाँ से। तो मोस्ट ऑफ टाइम तो मैं डे स्कॉलर ही था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस इन माय फाइनल ईयर आई टुक द हॉस्टल एंड आई स्टेड देयर फॉर 3 to 4 months ओनली। अच्छा इट वाज शॉर्ट पीरियड दैट आई स्टेड इन द हॉस्टल, बट मोस्ट ऑफ टाइम आई वाज द डे कॉलर। सर रैगिंग हुई थी आपकी? रैगिंग हुई थी, डेफिनेटली हुई थी, क्या हुआ बिकॉज था हमारे ragging टाइम में? पे तो रैगिंग तो बहुत ज्यादा था। रैगिंग में उस वही था कि सीनियर्स ने वही जैसे होता है जो यूजुअल कि सीनियर्स ने कहा कि आई मीन सैल्यूट करो, और जैसे जो भी वो परेड करवाते हैं वो परेड कराया। थर्ड बटन। हाँ, हॉस्टल में जैसे होता है कि विदाउट शर्ट यू हैव टू वॉक इन द हॉस्टल, एंड गर्ल्स हॉस्टल में जाना है, गर्ल्स हॉस्टल के वहां तक, वो सब चीजें फालतू की चीजें जो होती हैं वहाँ पे, वो पता हो रहा क्या फालतू चीजें? फालतू चीजों में वही था कि उन्होंने कहा कि हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल में जाकर एक बार एंट्री लेकर आओ, फर्स्ट फ्लोर पे जाओ और हाथ हिला के दिखाओ कि हम लोग पहुंच गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो वी ट्राइड दैट थिंग आल्सो, बट दैट वी कुडंट सक्सीड इन दैट थिंग। जो वहाँ के जो वार्डन था उसने हमें और देख लिया था, तो शी वाज आफ्टर आवर लाइफ कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे ड्रामा। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर इन हॉस्टल। डर बहुत था फर्स्ट ईयर में जब रैगिंग होती थी, बिकॉज सीनियर्स थे, तो हमारे टाइम पे रैगिंग थोड़ा स्ट्रांग था, तो रैगिंग बहुत ज्यादा होती थी। तो बट ठीक है, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज कहीं ना कहीं सीनियर से इंटरेक्शन हुआ एंड वी पीपल केम टू नो अबाउट देम एंड दे केम टू नो अबाउट आवरसेल्व्स एंड वी गॉट लॉट ऑफ गाइडलाइंस, लॉट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम द सीनियर्स आल्सो, लाइक हाउ टू गो अबाउट विद द एमबीबीएस फील्ड। सर आपका फेवरेट सीनियर जो आज भी आपसे टच में है? फेवरेट सीनियर जो आज भी मुझसे टच में है, आई वुड से एक डॉक्टर गौरव थे हमारे साथ, मतलब मुझसे 3-4 साल सीनियर थे, तो ही इज स्टिल इन माय टच। सो ही वाज द वन हु मेट मी व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर। तो ही गाइडेड मी कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बिकॉज सेकंड ईयर में थोड़ा सा हम लोग लॉस्ट थे। फर्स्ट ईयर तो फिर भी हमने निकाल लिया था, सेकंड ईयर में वी वर लॉस्ट बिकॉज वी वर नॉट हैविंग द गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, बिकॉज वहाँ पे लेवल थोड़ा बढ़ जाता है एमबीबीएस का। तो ही गाइडेड मी कि हाँ कैसे पढ़ना है। तो ही वाज अ पर्सन हु गाइडेड मी फॉर द एकेडमिक स्टडीज। एक डॉक्टर रवि थे हमारे साथ एंड ही गाइडेड मी how to survive in a hostel. Like Okay. if you are into this hostel, so what are the politics of the hostel, what are the things which you have to consider. So he guided me about the hostel survival. So I will not say कि only one senior was in my contact, so many seniors helped me out and obviously it was good experience for me. सर ऐसी एक पीस ऑफ एडवाइस किसी सीनियर ने आपको दी हो जो आप कभी भूलते नहीं हो? सीनियर्स ने, जैसे अगर मैं आपको कहूँ सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में आई आस्क्ड फ्रॉम माय सीनियर कि सर जैसे फर्स्ट ईयर तो हो गया एंड आई वाज टोटली लॉस्ट कि भाई फर्स्ट ईयर में हमने जो पढ़ा है वो उसका करना क्या है और सेकेंड ईयर में कैसे जाना है। तो ही गेव मी दिस एडवाइस कि सेकेंड ईयर जो है वो बेस है आपका बेसिकली। तो सेकेंड ईयर में हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं, फार्मा पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, तो हम पूरे डिजीज को एक बार में पढ़ जाते हैं। तो ऐसे पैथोलॉजी में हम पैथोलॉजी के बारे में डिजीज कैसे हो रहा है वो पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, फार्मा में हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं। तो ही एडवाइस में कि अगर तुम ये अच्छे से पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट ईयर का टच भी आ जाएगा और जब आप थर्ड और फोर्थ ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा दोबारा।
तो वहां पर आपको क्या चीज होगी, वहां पर आपको पेशेंट देखना है, आपको यही सब चीज उन पेशेंट्स में देखनी है, देन यू यू विल नॉट बी हैव द टाइम टू कम बैक एंड लुक एट ऑल द थिंग्स अगेन। तो ही एडवाइस मी कि सेकंड ईयर पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, एंड एक्चुअली द कॉन्सेंट्रेट आई कॉन्सेंट्रेटेड माई सेकंड ईयर, एंड फ्रॉम वेयर आई गॉट इंटरेस्टेड इन माई फार्माकोलॉजी ऑल्सो। तो वहाँ पर मुझे लगा कि यस दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिकॉज उस समय हमारे पास इतना एक्सपोजर नहीं था मेडिसिन और सर्जिकल फील्ड का। तो वहाँ पर ये चीज़ें डेवलप हुई, एंड दिस वाज आई थिंक द बेस्ट एडवाइस विच आई गॉट फ्रॉम माई सीनियर। सर अब पहले सबसे एक सिंपल सवाल पूछूंगा सर, कॉलेज की सबसे क्रेजी स्टोरी आपको क्या याद है? कॉलेज की सबसे क्रेजी स्टोरी में खुला बताना सर, बिल्कुल ओपन बताना है हमें। during the exam time there was an incident like when we were in first year, so like my next roll number who is now the consultant in the AIMS, so I will not take his names. हम ढूंढ लेंगे। So that the next person, like we planned that he will prepare one topic and I'll prepare the next topic. So we planned कि जब ये topic आएगा तो he will answer, he will write the answer and I will cheat him. I will cheat from his copy, and when this question is asked from my subject, and he will cheat from my copies. तो बेसिकली हुआ क्या, क्वेश्चन आया उसके सब्जेक्ट से, उसके टॉपिक से, एंड ही रोट आंसर, एंड ही वाज जस्ट शोइंग मी कि आप आंसर देख लो, बट आई वाज नॉट एबल टू सी इट क्लियरली। सो ही जस्ट पास द कॉपी टू मी कि आप इसमें सर आराम से देख लो, देन गिव दिस कॉपी बैक टू मी। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेन हिज कॉपी वाज विद मी, इन्विजिलेटर केम फॉर द साइनिंग द डॉक्यूमेंट, साइनिंग द कॉपीज, कि ठीक है लाइक ही इज एन इन्विजिलेटर, ही टू साइन द डॉक्यूमेंट। एट दैट टाइम हिज कॉपी वाज विद मी। तो जब वो उसकी सीट पे पहुंचा, ही वाज जस्ट सिटिंग बिफोर मी, तो मुझे लगा कि आज तो गए, बिकॉज उसकी कॉपी मेरे पास थी। तो मुझे जस्ट एग्जामिनर को डाइवर्ट करना था। उस एग्जामिनर को डाइवर्ट करने के लिए आई जस्ट स्टूड अप एंड सेड कि सर मुझे बहुत जोर से प्रेशर आया एंड आई हैव टू गो टू वॉशरूम। तो ही जस्ट लुक एट मी एंड सेड के ओके जाओ, चले जाओ। उस वजह से कहीं ना कहीं वो इंसिडेंट हुआ और मैं बाहर आया, और कहीं ना कहीं मेरी कॉपी पर आके साइन नहीं किए। वहाँ पे वो एग्जामिनर डाइवर्ट हुआ और कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को बचाया और अपने फ्रेंड को भी बचाया। दैट्स द मोस्ट क्रेजियस्ट मोमेंट। उसके बाद हम लोग को भी सोचते हैं कि हमने कैसे किया, तो इट वाज लाइक रियली। तो फिर कॉपी वापस कैसे ली आगे वाले ने? वो तो बाद में ले ली ना, जब एग्जामिनर चला गया उसके बाद। एक बार हमने एग्जामिनर को डाइवर्ट कर दिया, लाइक ही वाज जस्ट कमिंग इन द सीक्वेंस टू साइन द डॉक्यूमेंट्स। तो व्हेन ही वाज अबाउट टू रीच टू माय फ्रेंड, देन आई सडनली स्टूड अप एंड सेड कि सर मुझे जाना है। तो जिस तरह से मैं खड़ा हुआ, उसको लगा कि शायद मैं कुछ शरारत करने जा रहा हूँ बाहर। तो कहीं ना कहीं वो मेरे पीछे की तरफ आ गया, बाहर गेट की तरफ, तो वो डाइवर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं वो उसका सीक्वेंस जो था कॉपीज का, वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो उस वजह से हम लोगों ने अपने आप को बचाया। बट आफ्टर दैट वी डिसाइडेड कि वी विल नेवर डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो उसके बाद हम लोगों ने नहीं की, ऑल्दो वी रिमेन टुगेदर फॉर मेनी इयर्स एंड स्टिल इन माय कांटेक्ट, ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो अगर हम यहाँ कुछ सोचते हैं वो इंसिडेंट, तो ऑब्वियसली लाइक मोस्ट क्रेजियस्ट इंसिडेंट्स दैट वी डिड। तो मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा था ये चीज बिल्कुल भी। तो ऐसे ही होता है। तो नहीं सर, तब बनता है। आपने कभी पार्टी वार्टी करी कभी कॉलेज में? पार्टी वार्टी, हाँ, फेस्ट में वी पीपल एंजॉयड। कोक? हाँ, कोक ही चलता था, पेप्सी एंड कोक। हम लोग पेप्सी एंड कोक वाले ही हैं, हम लोग हार्ड ड्रिंक वाले नहीं थे। सर आज भी हार्ड ड्रिंक वाले नहीं है। पर साहब खाने का शौक है? डेफिनेटली खाने का शौक है। हाँ। सर को अपना चिकन वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है? हाँ, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन बोथ फूड आई लाइक, इंडियन फूड आई लाइक। तो दिल्ली में आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है जो कॉलेज के जमाने में जाया करते थे? अभी की बात नहीं कर रहा। कॉलेज के ज़माने में उस समय रेस्टोरेंट्स अलग होते थे एक्चुअली। उस समय जैसे एक पिक्चर हॉल था, चाणक्य पिक्चर हॉल। तो अब तो वो नहीं है पिक्चर हॉल, तो उसकी यादें हैं। तो व्हेन वी यूज्ड टू गो देयर टू वॉच द मूवीज, तो हर टाइप की मूवी देखने जाया करते थे हम लोग। और वहाँ पे कुछ ईटिंग आउटलेट्स है, तो हमारे कुछ एक दो वहाँ पे स्टैंडिंग कुछ स्टैंडर्ड ईटिंग आउटलेट्स है। वी यूज्ड टू हैव चिकन ओवर देयर, वी यूज्ड टू हैव नॉन वेज ओवर देयर। जैसे एक वहाँ पे साउथ दिल्ली में राजेंद्र ढाबा बहुत फेमस है, अभी भी है वो तो। वो अभी भी है वो तो। तो वहाँ पे एक वी पीपल यूज टू एंजॉय। अच्छा, हम कहेंगे तो वो चीज वो बेस्ट पार्ट था उसका। तो बहुत अच्छा सर खाना, डेफिनेटली। तो सर ऑल द फन असाइड, कब आपको लगा कि आपको नीट पीजी के लिए, आई थिंक आपके टाइम तो एआईपीजी वगैरह होते थे ना, एआईपीजी टीपीजी, तो वो पीजी एग्जाम के लिए सीरियस होना चाहिए? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, सबसे पहले मैंने अपने इंटर्नशिप में यूएसएमएलई के लिए कुछ महीने प्रिपेयर किया था, बिकॉज आई वाज प्लानिंग टू गो अब्रॉड। बट बिकॉज ऑफ फैमिली कंडीशन, जब वो मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ, देन आई डिसाइडेड नहीं, इट्स बेटर टू गिव द इंडियन पीजी, बिकॉज माय मदर वाज विद मी एंड कुड नॉट टेक माय मदर टू द यूएस। तो तब मैंने डिसाइड किया कि देन आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द नीट पीजी। सो आई गिव द अटेम्प्ट। तो वहाँ पे मतलब कि मुझे एक साल वहाँ पे ड्रॉप आया मेरा, बिकॉज आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएलई, देन आई स्विच टू दिस नीट पीजी। तो देन आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस माय एग्जाम। अच्छा, तो आपने शुरुआत कब से करी, मतलब कब, कौन से ईयर में लगा, या पोस्ट इंटर्नशिप में ही पढ़ाई करी अपने पीजी की?
During internship, I was kept on trying for prepare for this exam, not for the NTPG, for the US Assembly, but I frankly speaking I couldn't clear because I didn't have the guidance at that time. Okay. हमारे टाइम पे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे. डॉक्टर भाटिया जो अपना इंस्टीट्यूट है, ये तो जस्ट स्टार्ट हुआ था. तो डॉक्टर भाटिया यूज टू कम टू आवर कॉलेज एंड ही यूज टू से कि ठीक है ग्रैंड टेस्ट है. हमें ये नहीं पता होता ग्रैंड टेस्ट क्या होता है. हाँ, अरे मैं तो भूल गया सर, भाटी से पढ़े हैं. स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर भाटिया मेडिकल इंस्टीट्यूट. तो मैं सर से मिला था फर्स्ट टाइम. तो ही सेड कि आप आ जाओ. मैंने कहा सर कितना फीस है, बिकॉज एट दैट टाइम वी कुडंट हैव द मनी इन आवर पॉकेट्स. तो ही सेड कि बस आ जाओ, फ्री में आ जाओ, कोई बात नहीं, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए सब फ्री है. तो फर्स्ट टाइम आई गिव द ग्रैंड टेस्ट ऑफ भाटिया. देन आई रियलाइज कि नहीं ये चीजें मुश्किल हैं एंड वी हैड टू प्रिपेयर. अच्छा. तो ये है. तो फिर उसके बाद हमने प्रिपेयर किया था एग्जाम के लिए. तो फिर आपकी एपीजी में क्या रहा? एपीजी में मेरा रैंक was 1700. ओके. बट मुझे दिल्ली पीजी से मैंने सीट उठाया था. अच्छा. तो दिल्ली पीजी में माय रैंक was 68 ओके. and in 68 or 70 I don't remember exactly. And in NEET PG my rank was 1700. ओके. 1700. तो फिर आपने क्या उठाया सर? ऑफ कोर्स वो तो फार्माकोलॉजी उठाई. नहीं फार्माकोलॉजी मैंने पिक किया. हाँ. So I was having the options of surgical branches also, like I was getting MS surgery also, I was getting MS ENT also, but मुझे सर्जरी में नहीं जाना था frankly speaking. और मुझे जो करना था फील्ड, वो मेरा जो फेवरेट फील्ड था उस समय, which I plan to opt उसमें, वो था MD psychiatry. But उस समय because of some distribution of seats in different categories, I couldn't get the MD psychiatry in my favorite college. Like I was planning to have the seat in the EBAS, but I couldn't get it in Delhi. So I opted for this MD Pharma, so that at least I will be in touch with the drugs and I would be able to be more prolific in this field of pharmacology. So टीचिंग में आना कैसे हुआ आपका? Teaching में आना is kind of just a coincidence. तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ, let me tell you students all, मेरा सिलेक्शन हुआ, my rank was somewhere 68 to 70 rank in Delhi PG. So I went to meet Dr. Bhatia. And I asked him कि सर मेरे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं क्या उठाऊं. तो ही सर ने सीधे ही कहा कि सर्जिकल तो मत ही उठाओ, बिकॉज आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो ऑप्शन ही खत्म हो गया. वैसे भी सर्जिकल में बहुत स्ट्रगल है आगे, अकॉर्डिंग टू द सर एट दैट टाइम्स. तो मैंने सर्जिकल तो हटा दिया. तो सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप MD-PSM उठा लो, बिकॉज MD-PSM समथिंग अकॉर्डिंग टू सर एट दैट टाइम कि उसका ऑप्शन है, फ्यूचर है उसका, और हम लोग उसमें कहना कि गवर्नमेंट जॉब में सेटल हो जाएंगे. बिकॉज आफ्टर लिसनिंग टू माई बैकग्राउंड सर सजेस्टेड मी टू टेक द PSM. तो बट व्हेन आई वेंट फॉर द काउंसलिंग, समवेयर इट वाज इन माय माइंड कि मुझे अब कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना है. तो आई टुक दिस MD Pharma. So I went with this mind कि I will take MD-PSM. MD-PSM was there, MD surgery was there, MD MSc-NT was there, but I took this field MD Pharma because कहीं ना कहीं मुझे ये था कि थोड़ा सा बेटर कॉर्पोरेट फील्ड में रहेंगे तो बेटर करेंगे. फिर जब सीट उठा के मेरे पास डॉक्टर भाटिया का मैसेज आता है कि आपने क्या उठाया, एक बार मुझसे मिलने आओ. तो सर बिल्कुल मेरे घर के पास ही थे, हमने डिस्कस किया. तो मैं सर से मिलने गया, तो सर ने कहा ठीक है चलो जो किया आपने अच्छा किया, नाउ क्या वुड यू लाइक टू वर्क विद अस. मैंने कहा सर ठीक है कुछ काम कर लेंगे. तो पहला जो मेरा काम था DBMC में, दैट वाज 13 इयर्स बैक, वो ये था कि मुझे ग्रैंड टेस्ट चेक करना था कि किस ग्रैंड टेस्ट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और सब क्वेश्चंस का आंसर एप्रोप्रिएट है कि नहीं है. बिकॉज जैसे आपको पता है कि DBMC में जितने भी ग्रैंड टेस्ट होते हैं वो मल्टीपल प्रूफ रीडिंग के बाद ही आते हैं. तो आई वाज द वन पर्सन जो हु वाज लाइक वन ऑफ द लेयर, लाइक जो हु यूज्ड टू गिव दिस प्रूफ रीडिंग इन बिटवीन. तो वहां से मेरा टीचिंग वाला करियर स्टार्ट हुआ. तो सर ने मुझे बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे किया, बट इट वाज गुड, लाइक इट वाज काइंड ऑफ अ पॉकेट मनी फॉर मी. सर ने कहा तो देखो उस समय तो वो अमाउंट मेरे लिए बहुत ज्यादा था फ्रैंकली स्पीकिंग. सर ने मुझे 3000 रुपीज पे किए थे. So that amount was huge amount for me. तो because जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं था तो it was good for me. तो लेकिन ग्रेजुअली पे सर ने यही कहा कि लाइक आफ्टर 1 or 2 months कि हमने आपको ऑब्जर्व किया है एंड यू आर आई मीन वेरी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड यू आर डूइंग गुड इन दिस फील्ड, बिकॉज आपने MD Pharma उठाया तो व्हाई डोंट यू जॉइन अस एज अ फैकल्टी. तो वहाँ से वो करियर स्टार्ट हुआ फैकल्टी के लिए. तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है. जब एज अ फैकल्टी हमने स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं पता था, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट ईयर MD एट दैट टाइम. तो फर्स्ट ईयर MD में कितना आता होता है, और वो भी हार्डली कितने 7 और अभी 3 or 4 months ही हुए थे हार्डली. तो स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस तो बहुत बुरी. पहली क्लास बताओ, पहली क्लास कैसी गई थी और कहाँ थी, कब ली थी और कैसी गई थी? सो पहली क्लास तो आई मीन वही मैं बताने जा रहा था कि पहली क्लास तो बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ मेरे लिए वो था, प्रॉब्लमेटिक था. बिकॉज पहला क्लास ही मेरा एम्स के स्टूडेंट्स का था. दिल्ली एम्स के स्टूडेंट, दिल्ली मेम्स के स्टूडेंट, दिल्ली LH स्टूडेंट एंड और दिल्ली कॉलेज के स्टूडेंट्स वर सिटिंग ओवर देयर एंड आई वाज देयर टू टीच देम द फार्माकोलॉजी. तो वो तो कंप्लीट वॉकआउट हुआ था क्लास से. अच्छा. इट वाज अ मेजर फ्लॉप. कितने मिनट में हो गया था वॉकआउट?
मान के चलो कि उसमें अराउंड 150 स्टूडेंट्स थे एंड व्हेन आई वाज फिनिश्ड द क्लास ओनली 10 स्टूडेंट्स वर लेफ्ट and I was surprised, like I just asked from those students ki, how did you find the class? And there was a girl sitting over there from the LH. She said कि sir class was fantastic. So I was just just wondering कि या तो इसको ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है या फिर बाकी स्टूडेंट्स का लेवल कम था, इसको समझ नहीं आया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, बट she motivated me like somewhere when she said कि सर नहीं, your class was fantastic. तो मुझे लगा नहीं, ये तो अच्छा फील्ड है, जाना चाहिए, इवन 10 स्टूडेंट्स भी बचे तो कोई बात नहीं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास कैसी हुई फिर? नेक्स्ट क्लास थोड़ी फिर ग्रेजुअली बेटर होती गई, फिर डॉक्टर भाटिया से गाइडेंस मिली, तो ही टोल्ड मी कि कैसे आप स्लाइड्स प्रेजेंट करो, कैसे स्लाइड्स बनाओ, तो ही वाज द वन हु ग्रूम्ड मी अप कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है। बाकी ऑब्वियसली डीबीएमसी का स्टाफ उस समय भी वही था 13 इयर्स पहले, आज भी वही है। उस समय सब लोग यंग थे, अनमेरिड थे, सब लोग बड़े हो गए हैं, हम भी उस समय यंग थे, अनमेरिड थे, अब हम लोग भी बूढ़े हो गए हैं। तो ये सब चीजें हैं, बस चीजें चेंज हो गई। डॉक्टर नचिकेत वाज आल्सो देयर, यू वर इन 6th क्लास। डॉक्टर नचिकेत वाज इन 6th क्लास, नाउ ही हैज बिकम द सीईओ ऑफ आवर कंपनी। मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। नहीं सर, हम तो सेम ही है। नहीं तब भी आप बड़े भाई थे, आज ये बड़े भाई से सोचो ना। ग्रेटनेस ऑफ यू दैट यू आर कंसीडरिंग दैट थिंग, बट तो ये काफी चीजें, बस एज ही चेंज हुई है, बाकी चीजें तो वही है, वही है, फैमिली वाला माहौल है यहाँ पे। So it was wonderful experience to be in DVMC. Like nobody can tell me better than me and other faculties who were the students of the institute. जैसे डॉक्टर अंकुर जैन जो है हमारे, वो भी हमारे स्टूडेंट में साथ ही थे। डॉक्टर आशीष इज आल्सो विद अस, डॉक्टर रजत जैन इज आल्सो विद अस, सो ऑल वी आर टुगेदर, लाइक हम सब लोग सेम ही बैच के हैं सब लोग। अच्छा, सारे सेम बैच के हो ना? जस्ट 1 or 2 years का गैप है, लाइक वो लोग मुझसे कुछ सीनियर है, मैं एक 2 साल जूनियर हूँ, बट मोर और लेस वी आर ऑन द सेम साइड। तो वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुगेदर। सर, आपको ऐसी अपनी मोस्ट मेमोरेबल क्लास कौन सी याद है? एक होते इसके अंदर कुछ अलग हुआ हो, क्या कोई यादगार है वो क्लास? ऐसा कोई क्लास तो नहीं मैं कहूँगा कि यादगार है मेरे लिए, बट एक इंसिडेंट है जो बहुत ज़्यादा है। लाइक आई यूज्ड टू टेक क्लासेस इन मुंबई। तो ऐसा हुआ था कि एक बार बिकॉज ऑफ माई MD, उस समय MD 3rd ईयर में था, बिकॉज ऑफ माई एग्जाम आई कुडंट बी एबल टू टेक द क्लासेस, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस सम टाइम आई आस्क्ड डॉक्टर भाटिया टू टेक अ लीव so that I could prepare for my exam, MD exam, right? MD final exam. तो उस समय मुंबई से मुझे एक लेटर आया, एक स्टूडेंट्स के सब ने साइन किए हुए थे, अराउंड 150 स्टूडेंट्स के साइन थे, एंड हु वाज द पर्सन हु वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ DVMC, शी गेव मी दिस लेटर कि सर देखो ये स्टूडेंट्स ने लिख के दिया है, और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि अगर डॉक्टर सौरभ क्लास लेने नहीं आएंगे तो हम लोग क्लास में ही नहीं आएंगे। तो दे वर जस्ट डाइंग टू हैव माई क्लास एट दैट टाइम। तो that was the most memorable moment when I got that letter. उसमें सब स्टूडेंट्स के साइन थे एक एक करके, and सब स्टूडेंट्स have specially written कि सर please come to the Mumbai and took the class and take the classes for us. So that was the most memorable moment in DBMC, and it was like privilege for me that DBMC has given me this opportunity so that I have learned so much of thing and I've got so much of importance from the students also. तो ये पॉसिबल नहीं था अगर मतलब मुझे ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो DBMC gave me this platform so that I can be a good faculty, and Dr. Bhatia guidance is always there with me in every field of this coaching industry. तो ये तो है। डॉक्टर भाटिया के साथ आपकी फेवरेट मेमोरी क्या है? डॉक्टर भाटिया के साथ फेवरेट मेमोरी बहुत सारी मेमोरीज हैं, एक नहीं है, बहुत सारी मेमोरीज हैं। जैसे जो हम लोग, मैं आपको बताता हूँ इंसिडेंट। जैसे जब हम लोग यहाँ से क्लास लेके जाते थे, तो जैसे रात को 9 बजे हम फ्री हुए, तो डॉक्टर भाटिया और मैं हम लोग साथ जा रहे हैं, लाइक अपना एक जा रहे हैं साथ व्हीकल, एक ही सेमी व्हीकल में है। तो उस समय डॉक्टर भाटिया कहते थे मुझे भूख लग रही है, तो मैं कहता हूँ सर कोई बात नहीं, विल हैव सम फूड। तो कहते हैं नहीं मुझे स्ट्रीट फूड ही खाना है। तो ही यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल इन बिटवीन एंड ही यूज्ड टू हैव दैट बॉइल्ड एग्स फ्रॉम द लोकल वेंडर, लाइक लोकल वेंडर स्टैंडिंग ओवर देयर, एंड आई वाज जस्ट कीप ऑन इमेजिनिंग कि सर इतनी सीनियर पोस्ट पे एंड ही इज हैविंग दिस लोकल फूड। तो आई वाज लाइक कि सर हैट्स ऑफ टू यू, सर सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। तो ही एंजॉयड दैट फूड एंड ही आल्सो बॉट द फूड टू मी। सो दैट वाज अ वन मेमोरी, वेरी गुड मेमोरेबल मोमेंट वेयर आई लर्नड फ्रॉम हिम कि आप किसी भी पोस्ट पर हो, कितने मर्जी आप किसी भी रैंक पे पहुंचे, but you should be always be down to earth. You should not be you should not be a high-headed person. एक इंसिडेंट वो, सेकंड इंसिडेंट वो है when I was going to take the classes and doctor, like we discussed with डॉक्टर भाटिया का घर बिल्कुल मेरे घर के पास था। So at that time I was going, I used to have a 2-wheeler, right? So I said कि सर मेरे पास बाइक है, I'm going through this bike, and he was having his car. तो कहते हैं मैं तेरे साथ बाइक पे चलूंगा। मैंने कहा सर आप बाइक पे थोड़े ना आ सकते हैं। कहते हैं क्यों, प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, अच्छा लगता। कहते नहीं मैं तेरे साथ बाइक पे चलूंगा। मैं कहा सर आपके पास कार है। कहते तो कार में मैं क्यों बेकार में फ्यूल वेस्ट करें। तो ही वाज सच अ गुड पर्सन कि मतलब ये नहीं कि ही इज अ माइजर, आई विल नॉट से दैट वर्ड, बट एटलीस्ट ही हैज दैट
feeling in him कि we should not waste our resources. So that these were the things which actually make him a great person. That's why we have so much of respect for him. तो ये कुछ दो इंसिडेंट हैं जो मुझे डॉक्टर भाटिया से सीखने को मिलते हैं कि लाइफ में किसी भी रैंक पे पहुंचो, कुछ भी करो, बट यू शुड बी ऑलवेज बी आई मीन डाउन टू अर्थ पर्सन एंड ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल फॉर अदर पर्सन्स. नहीं सर, बहुत अच्छा लगा मुझे पुरानी यादें सुनकर. मैं तो सर की मुझे जो याद आती है तो डॉक्टर भाटिया सर के बहुत करीब थे. डॉक्टर मेरे पिताजी कहते हैं सर बहुत पास रहते थे. सुबह 7 बजे सर का कॉल चले जाता था डॉक्टर भाटिया सर को कि डॉक्टर सौरभ क्या कर रहे हो. मैं डॉक्टर साहब उठे होते थे, हाँ आ जाओ. हाँ, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे. हाँ, एंड मैं देखता था गाड़ी में बैठे दोनों, और यू नो आई यूज्ड टू गो, जब मैं स्कूल जा रहा हूँ तो पापा और सर गाड़ी में बैठे हैं, दे आर हैविंग देयर ओन डिस्कशंस. ठीक है, काफ़ी एकेडमिक वो चलती थी कॉन्फ्रेंसेस कि हाँ क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं. आई एम श्योर कि यही बातें चल रही होंगी, मैं सुन तो पा नहीं रहा था. तो सर आपकी लाइफ की आप क्या कहोगे, बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रही है? बिगेस्ट अचीवमेंट एक तो वही है कि एक तो इस मेडिकल फील्ड में हम आए, इस एंट्रेंस को क्रैक किया विच वाज नॉट इजी टू क्रैक. दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स. प्रोफेशनल अचीवमेंट यही थी कि आई हैव बिकम अ गुड फैकल्टी विद द ग्रेस ऑफ गॉड एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर भाटिया एज वेल एज अदर इंस्टीट्यूट पीपल. तो these are two biggest achievement that I have achieved. One is in the field of academics to become a doctor, and second is to professionally successful. और सर बिगेस्ट रिग्रेट क्या रहा है? बिगेस्ट रिग्रेट क्या रहा है लाइफ का? बिगेस्ट रिग्रेट में मैं यही कहूंगा कि अगेन दिस इज रिलेटेड टू डॉक्टर भाटिया बिकॉज आई वाज लाइक होल सोल पर्सन ऑफ डॉक्टर भाटिया ओनली ना. तो आई हैव एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली. सो बिगेस्ट रिग्रेट यही है कि जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था एज अ फैकल्टी, तो एट दैट टाइम आई वाज इन गवर्नमेंट जॉब, सो आई वाज डूइंग दिस पार्ट टाइम वर्क एज अ फैकल्टी. So he suggested me to come as a full-time faculty, like to leave the job, to leave everything. Don't go to the MNC, don't go to any government job. Come here with us. Dr. Bhatia invited me कि as a full-time faculty join करो. At that time, I didn't listen to him, like because somewhere it was in my mind because coaching industry इस समय ऐसा नहीं था कि we can take it as a full-time career. So कहीं ना कहीं यही था कि नहीं, अपना जो करियर है that is the best thing. So I didn't listen to him at that time and I continued my job and somewhere I wasted my 4 to 5, not I will not say the wasted, I have got experience of government job also as well as the other field also, the MNCs also. But कहीं ना कहीं वो टाइम अगर मैं शायद यहाँ स्पेंड करता तो चीज़ें थोड़ा सा बेटर हो जाती. और तो वो जो टाइम था लाइक व्हेन आई वाज जस्ट न्यूली गेट मैरिड एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, तो उस समय वो जो फेज था जब मैंने जॉब ज्वाइन किया और जॉब किया मैंने, तो वो टाइम शायद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नहीं टाइम दे पाया DBMC में, तो वो टाइम शायद मैंने लूज किया. तो वही रिग्रेट फील होता है मुझको. तो सर अब ना मेरे पास कुछ आपके लिए है, मैंने कुछ सर रैपिड फायर पसंद करे हैं. तो अब मैं आपसे सर कुछ रैपिड फायर पूछने वाला हूँ. गाइस गिव मी 1 सेकेंड, आई जस्ट ओपन अप. और सर इस रैपिड फायर में ना सर बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर करना है, दिल से आंसर करना है. ठीक है सर, जो पहली चीज आ रही है सर वो करना है. तो सर स्टार्ट करते हैं. रेडी? 1 2 3. व्हाट इज वन ऑफ योर हिडन टैलेंट्स? माय हिडन टैलेंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं. आई एम जस्ट ओपन बुक, सो व्हाटएवर यू कैन सी मी, आई एम जस्ट लाइक द सेम पर्सन. जो भी मैं अंदर हूँ वही बाहर हूँ. इट्स नथिंग, नो हिडन टैलेंट. ठीक है सर, कोई इशू नहीं है. सर ऐसी एक बात जो अभी तक बच्चे आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानते. नथिंग. सर आप छुट्टी वाले दिन क्या करना पसंद करते हो? छुट्टी वाले दिन आई वांट टू स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. इट्स द बेस्ट थिंग फॉर मी. अच्छा, मूवीज देखते हो आप? मूवीज नहीं, बस जब like whenever we have a like I was traveling during flight, I can watch the movie, but no, but I would like to spend time with my family. I would like to go out with them. It's the best time for me when तो आज के दिन आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है दिल्ली में सर? आप तो इंडिया घूमते हो, इंडिया में कौन सा आपका फेवरेट रेस्टोरेंट? If you ask me कि फेवरेट फूड कहाँ का अच्छा है, फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, तो again I would say the home food is best because हम लोग इंडिया घूमते हैं. हाँ. तो बाहर का फूड नहीं अच्छा लगता. अब पर इतना हैदराबाद रहते हो, अब हैदराबाद में हैदराबाद हो गया या दिल्ली हो गया या अभी आप कहाँ के चंडीगढ़ जाते हो सर, आप चंडीगढ़ में तो सर चिकन इतना बढ़िया मिलता है. And that's fine, but again वही मैं saying कि अगर मुझे कहीं भी ऑप्शन मिलेगा तो I would always prefer to have my home food. तो home food is the best food. Best food है. इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है. तो आपने जो लास्ट कौन सी मूवी देखी है सर आपने अभी तक? लास्ट मूवी जो देखी है that is Inception. इंसेप्शन? हाँ. ये तो बहुत पहले नहीं आई थी.
अच्छा, आप नेटफ्लिक्स पे देखिए, हाँ नेटफ्लिक्स पर देखिए। कैसी लगी आपको? गुड मूवी। आपको समझ में आया कि वो लास्ट में लट्टू को क्या होता है? हाँ हाँ थोड़ा बहुत। बताओ, ड्रीम था कि नहीं था? अब वही बात है, इससे अपना ओपिनियन है। हाँ, आप तो बताओ ना। अकॉर्डिंग टू मी कि उसका ड्रीम ही था वो। अच्छा, ड्रीम था। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे गिरने वाला होता है तभी उसे वो हाँ, हटा हाँ, देते हैं। सर, आपको पेट्स पसंद है? पेट्स नॉट मच। नॉट मच। नहीं, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 2 पेट्स हैं। तो सारे दिन मुझे तंग करते उनका हैं। नाम क्या है सर, एज क्या है? एक 8 ईयर ओल्ड है और एक अभी 2 ईयर ओल्ड है। अच्छा, हाँ तो वो वन इज बॉय एंड वन इज गर्ल, राइट? नो, बोथ आर बॉयज। अच्छा, बोथ आर बॉयज, ओके। तो मेरे पास 2 पेट्स ऑलरेडी हैं। नाम क्या है सर? One is Rudransh, that's Lord Shiva, and second is Danvit. That's a person who has a lot of knowledge and keep on imparting to other persons. सर, 2023 बच्चों के नाम इतने अलग हो चुके हैं ना, इतने अलग हो चुके No, no, हैं। these are the names like if I talk about my younger son, so I kept his name when he was about to born when I was taking class in Bengaluru. ओके, So this is a Kannada word actually. Okay. This Danvit. Danvit is a Kannada word and it's a Sanskrit word from in their language. So I have taken the word from there. वेरी It's not a यूनिक Hindi नेम्स, word. वेरी यूनिक नेम्स। सर, अगर आपका समर वैकेशन, वैसे तो हम आपको देते नहीं है, बट लेट्स सपोज हम आपको दे 2 महीने कुछ नहीं आपके पास करने को, छुट्टी है आपकी, क्या करोगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, पहले तो यही सारा कुछ एक बार रिचार्ज करेंगे अपने आप को, हाँ, कैसे? कि थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, प्लान करेंगे कि आगे क्या करना है, कैसे अपने को बेटर किया जा सकता है, कैसे वी कैन टेक अ बेटर क्लासेस एंड वी कैन गिव बेटर परफॉर्मेंस इन द डीबीएम से। इज द फॉरमोस्ट थिंग व्हिच वी ऑलवेज लुक फॉर, कि अगर हमें टाइम मिले तो सबसे पहले ये किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, नेचुरली हम कुछ ना कुछ न्यू वेंचर्स के बारे में सोचेंगे, सो दैट कि हम अपने जो भी हम प्रोफेशनली करते हैं या फिर कुछ भी हम लाइफ में करते हैं उसको इस तरह से एक्सपेंड किया जाए और एवेन्यूज जनरेट किए जाए, जिससे कि हम सोर्स ऑफ इनकम या फिर सोर्स ऑफ नॉलेज को जनरेट कर सकें या स्टार्ट कर सकें। सर, अगर आपको वेकेशन पे जाना हो तो वो कौन सी जगह पसंद है? वेकेशंस पे जाने के लिए आई वुड से स्विट्जरलैंड, यूरोप इज गुड। अच्छा, और ड्रीम वेकेशन में? सेम लाइक ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड। सर, आपको खाना बनाना आता है? नहीं, बिल्कुल भी? नो, जीरो? जीरो। टोटली जीरो। तो चलो फिर सर, ये बात है कि अगर आपकी लास्ट नाइट हो सर दुनिया में और आपको एक आखिरी खाना खाना है, आखिरी मील है सर, वो क्या होगा? आखिरी मील लेना है और वो क्या होगा, देन आई वुड से सिंपल लाइक नॉर्थ इंडियन फूड। नॉर्थ इंडियन क्या? लाइक सेम चपाती एंड वेजिटेबल prepared at home. चिकन में नहीं? And no, not chicken. I mean, that's fine. Like there was a time when I used to be very fond of chicken. But अब ऐसा नहीं है, like with age, like when you become old, तो ये सब चीजें नहीं वो रहती। अभी कहाँ ओल्ड होएगा आप, अभी तो जवानी के दिन चल रहे हैं आपके। तो नहीं, any food, like any veggie or any non-veggie food prepared at home. ओके। और सर, अब लास्ट क्वेश्चन है गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हैवी भी है, लंबा भी है। क्वेश्चन सही है कि आपको लॉटरी लगी है सर, आपको कहा गया है कि टीचिंग छोड़ के कुछ और जॉब करनी है, कुछ और करना है बेसिकली, तो क्या करोगे सर? एनी टाइम मेरे पास तो एक ही चीज है, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। इसको सोचना ही नहीं है। हार्ट टू हार्ट, राइट? टीचर हार्ट टू हार्ट ग्रेजुअली। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जैसी मुझे ऑप्शन मिलेगा, और अगर मुझे कभी भी फाइनेंशियल वो नहीं रहता, तो आई विल टीच स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 3 एंड होता है। मुझे लगता है कि बहुत ही एक दिल वाली बातें सुनी हमने, सौरभ सर की जिंदगी में झांका है, बहुत सारी बातें पता चली है कि सर ने एक बार सामने वाले की पूरी शीट ले ली थी और एग्जामिनर घुमा दिया था। यही बात हम याद रखेंगे। और आप किसको चाहते हैं, हु शुड बी द नेक्स्ट गेस्ट ऑन माय पॉडकास्ट? छोटा सा पॉडकास्ट है, प्लीज सपोर्ट करिए और मैं ऐसे ही किस्से आपके लिए लाता रहूंगा। एपिसोड 4 के लिए कौन होगा नेक्स्ट गेस्ट, आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। I'll request that person to come here and I'm sure we are going to have a wonderful chat again. Thank you so much for listening to us. God bless you all and take care. Thank you. Thanks to all of you.